It is recommended 0 to 2 years, not screen at all. उसके बाद 10 minutes a day, above 5 years it is 2 hours for anybody. टीनेजर के लिए कितना है वो भी बता दो. 2 hours. 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर हम एडल्ट्स इतने बड़े हो के we are stuck to our phones, वो तो फिर भी बच्चे हैं. ये बात तो सही. If somebody has just 2 girls, अगर फादर जैसे कि उनके साथ बैठ के every topic should be open कि वो comfortable रहें, because every time mother cannot be around. If the girls are with the father, they should be, open to talk about maybe periods or anything. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को बहुत ही बड़े वाला हेलो. आज की हमारी गेस्ट बहुत ही खास है और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने वाली है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनको बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट रहता है. मीट आवर स्पेशल गेस्ट दृष्टि चुग. शी इज अ चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंट कोच. हाय दृष्टि. Hi Meenu. हाउ आर यू? I'm good. How are you? बहुत सारे सवाल है मुझे आपके साथ जो करते हैं. All are welcome. Welcome Drishti to our show स्त्री She Inspires. Thank you so much Ritu. And कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आके? I'm very happy. एक बहुत अच्छी feeling है कि I can share with all the parents and with all the children from the platform is your show. So I'm really happy to be here. So दृष्टि, ये जो पॉडकास्ट है ना, this was actually waiting for you to come here and answers all the questions. Thank you. Because I think आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल ही ये है कि as a working parents we are constantly 24/7 in guilt. Yes. So you need to make sure that by the time you are done with this podcast, we are all guilt free. Yes. ये आपकी responsibility है. Definitely. I'll try to do that. Perfect. So Drishti, tell me something about yourself. कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ अपने काम के बारे में. How did you think of starting this? Why child and a parent counselor? And you have a 1-year-old son. So, Yes. We want to know so much about you. Yeah. So I am Drishti. I have done my Masters of Counseling from Australia, Melbourne. So I was in Melbourne for around 5 years. And I did my early childhood education certificate course there as well. And then when I moved back to India 3 years back, so I decided to move back because I wanted a balance in my life. And when I was outside, I was just like, is it work or just, Monday to Friday and Saturday, Sunday, you're just chilling at home. But I have always preferred that balance. So I've moved back and I became a parent coach as well. I worked with special needs children as well, with autistic kids, behavioral problems, literacy problems. So when I was a teenager and I used to see what was happening with little children, of me myself, how parents are handling the situations, even my little girl's mind used to say, यार मम्मा ऐसे भी तो बोल सकते थे, मम्मा ऐसे भी तो बोल सकते थे. So ये आपका मतलब बचपन से ही डिसाइडेड था कि आपको पेरेंट कोच, चाइल्ड कोच ही बनना है मतलब? यस, मतलब टर्म्स नहीं पता थे तब, बट था कि हाँ बच्चों के साथ मेरे को काम करना है, मेरे को बड़ों पेरेंट्स के साथ. बट व्हाई नॉट टीचर, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, व्हाई ओनली चाइल्ड काउंसलर? चाइल्ड काउंसलर बिकॉज एक होता है ना खाली दीवार, the way you paint it comes beautifully like that. So I feel a child is like that, empty canvas, how you paint and you draw in it, and the artists are the parents. So it really depends कि एक parent कैसे अपने बच्चे की upbringing कर रहा है, parenting styles क्या है उनका बात करने का तरीका कैसा है अपने बच्चों के साथ. इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से एक बच्चा जो adult जब बनता है वो चीज़ें साथ ही लेके आता है. So that when I used to see, मैं अपनी फैमिली में या अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में जब मैं ये चीजें देखती थी, मेरे को in my mind, यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, यार काश उसने ऐसे बोला होता. Were you था. very judgmental that time? Not very judgmental, but yes, I used to be very, very observant how adults are treating children and how they are talking. But I never said it aloud. But in my mind, I used to correct the situation कि यार ये नहीं, ये word होना चाहिए था. वो बच्चा इस time पे upset ना होता, वो रोता ना. So that is how when I was growing from my teenage age to adulthood, these situations came popping up and I decided नहीं यार ये words भी है, ये degree भी है, ये भी. So that is how I did child counseling and became a parent coach. Very nice. दृष्टि, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी,
how open are parents to such kind of counseling? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है आज भी कहीं ना कहीं माइंड में एक कह लो कि एक ऐसा हमारे में भी है कि काउंसलिंग वर्ड हम आज भी डरते हैं कि जैसे होता है ना कि काउंसलिंग के कई माइंड में हमारे ये चीज आ जाती है कि अरे हम क्यों काउंसलिंग कराएं या हमारे बच्चों की काउंसलिंग क्यों होना चाहिए. सो डू यू थिंक पेरेंट्स हैव ओपन अप टू दिस काउंसलिंग थिंग? Not 100%, Adapting. but they are still in the process of adapting the situation कि हाँ it exists. फिजिकल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल एक हेडेक होता है, हम उसी वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं, हम आई टेस्ट भी करा लेते हैं, हम जो टेस्ट अवेलेबल हैं सब. बट व्हेन वी आर रियली स्ट्रेस्ड और इमोशनल, हमें कहा जाता है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं. लड़कों के लिए तो खास करके है ना, होता है. लड़के रोते नहीं हैं. क्यों? वी ऑल हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस. ये सिर्फ एक इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, किसी के पास भी हो सकते हैं. पेरेंट्स अब जाके थोड़ा सा, जो मेरे कई क्लाइंट्स हैं अब जाके कोई अडेप्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि हर सारे नहीं. अब जैसे कि मदर रेडी हो जाएगी तो फादर नहीं होगा, बट अगर बहुत ज्यादा नीड है, आई हैव सीन मदर्स डोंट इवन टेल द फादर्स, एंड वो प्रॉब्लम भी हो जाती है. बिकॉज इफ यू आर ब्रिंगिंग योर चाइल्ड काउंसलिंग के लिए, मदर एंड फादर एक लूप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वी वेस्ट ईच अदर्स टाइम. दृष्टि, मुझे एक चीज बताओ, आप कब पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि उनको एक चाइल्ड काउंसलर की जरूरत है? एट व्हाट एज? कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जो वो फेस करते हैं और उसकी वजह से उनको एक चाइल्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए? व्हेन विल दे रियलाइज, एंड हाउ यू नो, कहते हैं ना, इसकी अवेयरनेस कैसे और होगी? बिकॉज लेट मी टेल यू, आई हैव 2 daughters, ठीक है, बट होता क्या है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, बस डॉक्टर के पास चले जाओ, इसको ये सोई नहीं है ठीक से, या ये हो गया, ये हो गया. हाँ, वी डोंट रिलेट दैट. हाउ डू आई विल गेट टू नो दैट मुझे आपकी जरूरत है? लुक, एक छोटी टीनेजर के, बिकॉज टीनेजर ऐसा तो होता नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीनेजर, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, ठीक है, रियलाइज हुआ कि मुझे एक चाइल्ड काउंसलर की जरूरत है व्हेन माय डॉटर वाज 7 year old. मैंने तब बात भी करी, एंड ऑनेस्टली तब ये नया नया आया था थोड़ा सा, सो मैं थोड़ी डरी भी हुई थी क्योंकि आई वाज आल्सो अडैप्टिंग टू इट कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. माय हस्बैंड वाज आल्सो लाइक कि क्वेश्चन मार्क, व्हाई, यू नो, हमारा बच्चा है, हम सब समझते हैं. तो मैं तो फिर भी अडैप्टेबल थी, बट मेरे फ्रेंड्स, मैंने देखा है बाकी सारे लोग, लाइक रितु आल्सो सेड कि हमें नहीं समझ में आता, हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं. बिल्कुल. सो पता, छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं. बच्चा में भी खाना कम कर देता है अपनी डाइट से, या बहुत बढ़ा देता है. जब बहुत बढ़ा दे, वो स्ट्रेस ईटिंग होती है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. जब जैसी जैसी एज हो रही होती है, अंदर हार्मोन्स आर चेंजिंग. For girls and boys both, different way में they are growing up, growth spurts आते हैं, their physical body is increasing, they are getting pain in their body, and उनको लगता है, for girls their breast size is increasing, and they are not able to tell, अच्छा मम्मा गुस्सा ना करें. कहीं ना कहीं उनको ये चीज इसलिए लगी है because maybe that specific mama or that specific पापा किसी छोटी बात को उन्होंने सुना ना हो. जब बच्चा बात कर रहा हो, maybe parent was on their phone, एंड बच्चे को लगा यार हम किससे बात करें, हम तो बात ही नहीं कर सकते मम्मा से. इवन लिटिल द ग्रोथ स्पर्ट्स, लिटिल थिंग्स, एक छोटे सिचुएशन से बच्चे फिर छुपाना शुरू कर देते हैं. बिहेवियरल चेंजेस स्टार्ट्स टू हैपन. मे बी दे आर स्टेइंग मोर इंडोर्स. जो बच्चे को बाहर ज्यादा खेलना पसंद है, वो इंडोर्स ज्यादा रह रहा है, या कोई स्पेसिफिक गेम ज्यादा खेल रहा है टू डाइवर्ट देयर अटेंशन. बिकॉज आजकल गेम्स जैसे चल रही हैं, कैंडी क्रश हो गई, और इतनी मोबाइल में गेम्स हैं, उससे क्या हो रहा है, बच्चों का अटेंशन स्पैन डाइवर्ट हो रहा है. दे आर रीडायरेक्टिंग देमसेल्व्स. वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहे बिकॉज दे फील आवर पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड. सो दृष्टि, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बच्चे हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो बच्चे गेम्स के खेल रहे हैं आजकल, ऑब्वियसली आफ्टर कोविड ये गैजेट सिस्टम बहुत इंक्रीज हो गया है, एंड इवन इफ एज अ पेरेंट आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय किड्स, आई एम अनेबल टू डू दैट, राइट? क्योंकि स्कूल्स का भी सब कुछ जो चीजें हैं, सिस्टम है, दैट इज ऑन देयर एप्स एंड ऑल, राइट? तो वहां पे आप कह रहे हो कि जैसे बच्चा है वो गैजेट्स के अंदर ज्यादा है. इज इट अ रेड फ्लैग फॉर एवरी चाइल्ड? एंड आई आल्सो वांट टू ऐड दिस, रितु, कि सिंस वी
we are going through a extreme weather condition nowadays. Yes. ठंड होती है तो बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी होती है, and like you said कि बच्चे बाहर नहीं जाना चाहता है। मेरी बेटी बाहर जाना ही नहीं चाहती। Yes. शी इज वेरी कंफर्टेबल बीइंग एट होम, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो फ्रेंडली भी है, वो बात भी कर रही है, बस वन थिंग इज दैट कि वो बाहर नहीं जाना चाहती है। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एज पेरेंट्स अब नाउ हमें भी लगता है कि इतनी गर्मी में देखो हम बाहर भेज भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, किस तरीके से अब हम इस पे काम करें? इस देखो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन, वेदर कंडीशंस आर कमिंग इन, जब सब कुछ कंबाइंड हो जाए ना, सो हमें एज पेरेंट्स सब कुछ प्लानिंग करनी है प्रायोरिटी वाइज से। फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम को कट करने के लिए उनका जो हॉबीज हैं, उनके इंटरेस्ट हैं इंडोर वाले, हम उनको प्लान आउट करें। फॉर एग्जांपल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, अगर उनको किसी कुकिंग में इंटरेस्ट है, अगर छोटे बच्चे हैं तो नॉन गैस वाली कुकिंग, फॉर सैंडविच मेकिंग, सैलेड मेकिंग, अपने साथ उनको किचन में इन्वॉल्व करो। उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनमें, सेंस ऑफ आएगा कि अचीवमेंट, कि यार वी हैव मेड समथिंग, एक वो आएगा। इससे होगा जब व्हेन दे आर ऑन द गो, इससे बहुत ज्यादा एक तो चेंजेस आते हैं। एंड व्हेन दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, planned activities with the family, with the parents, अगर parents they are working and they are not at home, अगर कोई grandparents हैं, कोई siblings हैं, just planning things at advance. And now I'll cover Ritu your point. Yes, you are right, school का सारा काम is on the gadgets. COVID के बाद से classes हो गई, even tuitions, अगर कोई नहीं जा पा रहे तो teachers they keep tuitions online. So उसमें ये है कि जो उनका movies and series देखने का time है, we can keep that separate. Fixing the time, like 1 hour maximum वैसे है, day का 2 hours for children above 3 years of age. Like it is recommended 0 to 2 years, not screen at all. उसके बाद 10 minutes a day, and from above 5 years it is 2 hours for anybody. Either you can split it, give the sense of responsibility and decision making on the children. Like, do you want to use these 2 hours all together, or do you want to spread these 2 hours throughout the day? So that is how we can divide things, that is how we can plan टीनेजर के लिए things. कितना है वो भी बता दो। 2 hours. 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है। बट दृष्टि आप just imagine कि we as parents, especially we as working parents, जो अपने बच्चों पे टैब नहीं रख पाते, उनके लिए ये कितना बड़ा टास्क है। Definitely. And 2 घंटे, I think for teenagers, especially we both are teenage moms, but किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है 2 घंटे में। तो जैसे मेरा बच्चा तो मुझे कहता है मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तो उस केस में मैं क्या करूँ? देखो, जो ट्यूशन एंड स्कूल का वर्क है वो तो एक अलग है, उस पर जो टाइम लगना है। 2 hours है उसके लिए वॉचिंग मूवीज, सीरीज एंड गेम्स, बिकॉज वी कैन नॉट कंबाइन दैट, बिकॉज वो चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं। जो स्कूल का और ट्यूशन्स का काम है वो तो जितना टाइम लगना है वही है, बट येस 2 hours बिकॉज इट रियली इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड व्हेन दे आर टू मच इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। आप नोटिस करेंगे क्योंकि अब फास्ट पेस वाली चीजें बच्चों को पसंद है। आप देखो उनको रिटन चीजें पसंद ही नहीं है। क्यों? बिकॉज हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, हमारी ब्रेन वेव्स चेंज हो रही हैं बच्चों के, बिकॉज दे लाइक, अब जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, बोर्ड वेरी फास्ट, एग्जैक्टली, अभी ये करें टक करके उनको कुछ और करना है। बिकॉज आजकल जो गेम्स खेल रहे हैं उससे वो ब्रेन वेव्स जा रही है उनके ब्रेन में, एंड दोस आर जस्ट चेंजिंग all the brain cells and all the neurons in us. That is what is happening. But I'll tell you something. जैसे आपने कहा ना कि हम टॉयज वैसे रखे उनको एक्टिविटीज में, ऋतु ना बड़ा सोच समझ के लेगो लेके आती है अपने बच्चे के लिए। सोच 2 घंटे बिजी रहेगा, ठीक है, और वो 5 मिनट में वो लेगो तैयार करके ना वो उसको होता है कि अब मैं क्या करूं। Actually a struggle, like अब जैसे summer vacations हैं, I believe every parent will struggle at this moment to keep their kids engaged, और जैसी heat wave चल रही है, right? We अगर हम जैसे कहते हैं ना holidays भी प्लान करते हैं तो कहाँ प्लान करें? तो सब जगह पहले शिमला होता था, ये सब heat waves में जा रहे हैं। तो what activities actually we can, जैसे आपने हमें गाइड किया कि जो नॉन फायर ऐसी कुकिंग में हम उनको इंडल्ज करें, बट दृष्टि प्रैक्टिकली मैं उस पॉइंट से सोचूं, मतलब एक टाइम पे हमारी एनर्जी भी उस चीज से मतलब खत्म हो चुकी होती है कि क्या एक्टिविटीज में इंडल्ज करें। If you can suggest some practical solutions for working parents. Yes. So first of all is prioritizing the needs of your children.
उसमें ये हो जाएगा कि एक जैसे कि बिफोर योर वीक स्टार्ट्स, बिकॉज वीकली बेसिस पे वी कैन प्लान इट, बिकॉज लेट्स कीप इट शॉर्ट, मंथ पे नहीं जाएंगे, लेट्स कीप इट शॉर्ट। उससे पहले ये होगा प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज कि बच्चा अगर उनकी कोई हॉबीज है, जिमनास्टिक्स है, डांस क्लासेस हैं, कोई कंप्यूटर क्लासेस हैं, कोई भी क्लासेस में अगर आप उनको इनरोल कर सकते हो जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी हो, लेट देयर एनर्जी ड्रेन आउट, बिकॉज हर किसी को अपनी एनर्जी किसी ना किसी वे में निकालनी है। सो आजकल व्हाट आई हैव सीन, aggression is also forming, because the energy बच्चों की निकल ही नहीं रही है, because they are stuck to the gadgets। अगर उनकी एनर्जी नहीं निकलेगी, वो एग्रेशन अंदर वो फॉर्म होएगा एंड किसी ना किसी वे में ट्रिगर होके इट विल कम आउट। सो बिफोर लाइक व्हेन यू प्लान योर डेज, उसमें योगा मंडे को दिस टाइम पे एक्टिविटीज, डू कीप सम टाइम फॉर स्क्रीन टाइम एंड देयर टेक देयर येसेस एज वेल, बिकॉज वो बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी जस्ट बिकॉज ये रियलिटी है, अगर हम एडल्ट्स इतने बड़े होके वी आर स्टक टू आवर फोन्स, वो तो फिर भी बच्चे हैं। ये बात तो सही है। अगर हम भी अपने है ना, बिकॉज वी आर ऑन, बिकॉज हमें भी देखो, अगर हमें 10 मिनट में मिलते हैं, सबसे पहला हाथ कहाँ जाता है? फोन पे। हम इतने एडल्ट, वी हैव सो मच, सो व्हेन आवर चाइल्ड डज दैट, वी एज पेरेंट्स वी फील वेरी बैड, अरे यार ये बच्चा तो सारा दिन ही फोन पे है। सो रोल मॉडलिंग इज द की इसमें, जब फोन्स की बात आती है। बाकी है प्लान योर एक्टिविटीज विद देम, प्लान फैमिली टाइम एज वेल। अगर आपका काम शाम को 6 बजे खत्म है, जितने मर्जी 7 बजे है, उसके बाद 1 आवर, हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, गिव योर टाइम टू योर चिल्ड्रन, अनडिवाइडेड अटेंशन। विद अनडिवाइडेड आई मीन नो घर का काम, कोई ऑफिस की बात नहीं, कोई फोन नहीं, जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वाज योर डे, बिकॉज दिस वर्ड कैन चेंज एनीबडीज लाइफ। This word can start a communication between a husband and wife, a girlfriend boyfriend, between siblings, and between a relation of a child and a parents as well. दृष्टि, नाउ ये चीज हमने सब समझी है कि जैसे गैजेट्स को लेके। दूसरी चीज है, अभी रिसेंटली बोर्ड के रिजल्ट्स आउट हुए, तो अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, चाहे वो CBSE, ICSE, कौन सा बोर्ड है, तो किड्स आर स्कोरिंग लाइक, मतलब जो हम पहले कभी भी नहीं सुनते थे, 99.9%। तो दो एज अ पेरेंट मेरे को बड़ी, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मैं सोचती हूँ यार कितना पढ़ते होंगे, कि मतलब कैसे लाते हैं ये 99 और वो 0.1% क्यों कटा, मतलब that brings us to a very required topic, जो बहुत मुझे important topic लग रहा है कि इससे कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कंपैरिजंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, कंपटीशन, एंड वो मतलब घरों में इतना कि अच्छा उसके इतने आए, तुम्हारे इतने आए। एक घर में 4 बच्चे, आई मीन अब आप 2 भाई के बच्चे हो गए, उनके बच्चों में जो भी कंपैरिजन होता है, मतलब वो इतना स्ट्रेसफुल होता है। उसका बच्चा इतने मार्क्स लेके आया, तुम्हारा बच्चा इतने मार्क्स लेके आया, तुम्हारे कम क्यों आए, उसके ज्यादा आ रहे हैं, तुम उससे कुछ सीखो, उससे कुछ सीखो। भाई क्यों सीखे हम, मुझे ये बताओ। लोग ये जो कंपैरिजन है ना, दैट इज वेयर पेरेंट्स नीड अ पेरेंट कोच, कि उसमें वी ट्राई टू ब्रेक द बैरियर। उसमें व्हाट पेरेंट कोचेस डज इज कि वी teach, not maybe teacher, just tell parents what kind of words to use with your children, but how to inculcate a communication about a certain topic. I'm sorry, but जो ये बातें बोल रहे हैं, जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उनको काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है? Yeah, definitely, that is what I meant. But वो लोग कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं कभी भी नहीं, वो कभी ऑप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज look in many, it is just the Indian mentality कि हम बड़े हैं, हमने बच्चे पैदा किए, हमें ज्यादा पता है। अगर हमारे बट विद एवरी ईयर, अब तो पहले होता था 5 साल की एक जनरेशन है, अब तो 1 साल में जनरेशन इज चेंजिंग, है ना। अगर एक बच्चा 13 साल का और एक बच्चा 12 साल है, उनकी बातों में ही बहुत फर्क है। एंड पेरेंट्स का जो टाइम था, और चाहे वो मेरी जनरेशन है, मेरे आगे की जनरेशन है, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू।
and when entirely the education system is changing, it's changing. It has, मेरा बड़ा बेटा is 16, Okay. तो मेरा छोटा बेटा अभी कल ही 9 years का हुआ है, राइट? तो मेरे को लगता है जो मैं बड़े को पढ़ा रही थी जब, और अब मैं छोटे को पढ़ा रही हूँ, उसकी स्टडी इंटायरली चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब एक IB भी आ चुका है, Yes, IB, राइट? एंड वो चीज हम लोग, मतलब कि मैंने जैसे पढ़ा है या मेरे बड़े बेटे ने पढ़ा, मेरा छोटा बेटा अलग से पढ़ रहा है कुछ, जो कि प्रोजेक्ट्स है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब मैं आपको एक शेयर करती हूँ, मेरे फादर आए दृष्टि घर पे, तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे छोटे बेटे को बोला कि तू का टेबल सुना, तो ही कुडंट जैसे हमारे टाइम पे होता था 2 into 2 दिस, सो दे डू इट इन अ डिफरेंट वे। तो जब वो आंसर नहीं कर पाया तो मेरे हस्बैंड को भी लगा कि स्कूल सही नहीं है, बिकॉज वो उनके वाला चीज नहीं बोल पाया, या मेरे फादर को लगा कि अब मेरे हस्बैंड का जो, या मेरे फादर के टाइम हिंदी में भी वो पहाड़े बोलते थे, दो आई डोंट नो हाउ मच अवेयर यू आर, पहाड़े होते थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि हमारे टाइम पे पहाड़े होते थे। सो आई बिलीव आज का एजुकेशन सिस्टम इतना बदल चुका है, जहाँ पे ये पहाड़े अभी तो हिंदी पढ़ाना इज अ टास्क। आई बिलीव हम सब एज अ पेरेंट हिंदी के साथ ही सबसे ज्यादा, किसी भी मदर की बात सुनोगे, मतलब दे ऑलवेज टेल कि हिंदी में दिक्कत आ रही है, जबकि वो हमारी मदर टंग है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा हिंदी पंजाबी अपनी लैंग्वेजेस में ही प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप ये बात कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम की, सो अब जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे बच्चे उसी में अब ग्रो करेंगे, तो उसमें हमें एज पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करना है। हम तो अडेप्ट कर लेंगे, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आगे की और हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, वो बिकॉज इंडियन फैमिली में एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन वन फैमिली, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। बट सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस इज सिटिंग डाउन विद एवरीबडी एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यार अब दिस इज द एजुकेशन सिस्टम, ऐसे चीजें चलती हैं, ये इनकी बुक्स हैं। आजकल तो आई सीन बुक्स भी नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द टैबलेट और ऑन द फोन, या अपने आप रिसर्च करके बिकॉज ये जो सिस्टम है दिस इज डन इन आउटसाइड कंट्रीज। बाहर की कंट्रीज में ये किया जाता है, जहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया है, उस पे आपको 1000 वर्ड्स का एस्से लिख के लाना है, वो अपने आप आपने रिसर्च करनी है उस टॉपिक पे। सो दिस थिंग इज कमिंग इन IB बोर्ड बिकॉज माई नीस इज डूइंग IB बोर्ड एंड शी टेल्स मी, मासी दिस इज हैपनिंग। सो इवन me as being in this generation trying to understand as well, it gets hard for me as well to understand, but I ask questions, asking questions, अगर आपको कहीं भी डाउट है, ask questions in a very polite, very decent way to your children so that their confidence doesn't drop down. दृष्टि, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने हमेशा बहुत लोगों से ये सुना है कि तुम्हारी लड़कियां हैं ना, तो तुम्हारे को बहुत इजी रहेगा, ठीक है, स्पेशली ये मॉम ऑफ बॉयज, तो मुझे बहुत बोलती मीनू आपकी लड़कियां है ना, आपकी बेटियां है ना, दे आर सॉर्टेड। सो यू नो थोड़ा सा आप मॉम ऑफ बॉयज को बताओ कि कितनी सॉर्टेड है हम और ये वाला कंपैरिजन क्यों होता है, और ये कितना सही है और कितना गलत है? देखो, सही गलत का तो पता नहीं, बट अपनी इंडियन सोसाइटी में ये लड़का और लड़की का कंपैरिजन चलता आ रहा है। आई थिंक इन टुडेज डेट जितनी इमोशनल लड़की होती है उतना ही इमोशनल लड़का। एग्जैक्टली, बिकॉज एज अ मदर, मीनू मैं 2 लड़कों की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को उसके इमोशंस एक्सप्रेस करने देती हूँ। जब भी वो रोया है, मैंने कभी नहीं बोला कि तुम स्ट्रांग हो, तुमने रोना नहीं है। आई मेक हिम सेड, आई टेल हिम कि अच्छा ठीक है, यू आर फीलिंग बैड, तुम बिल्कुल, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू मी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। Thank you so much for doing that, because this is what the Indian society is missing. Yeah. This is the part I have actually seen the labels of good boy, bad boy, good girl, bad girl. अच्छा, आपने ये नहीं किया, आप तो bad girl हो, मतलब बच्चे को पूरा ही बुरा बना दिया। What I say, label the action, not the human being. और एक सिचुएशन और है, जैसे मैंने इसको देखा है इन हर फैमिली, इसके 2 बेटे हैं प्लस हस्बैंड, तो शी इज द ओनली वुमन इन द हाउस, एंड इन माय केस माय हस्बैंड इज द ओनली मैन इन द हाउस बिकॉज़ आई हैव 2 daughters. ठीक है, तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से पेरेंट्स को और चाइल्ड को एडजस्ट करना पड़ता है इन सम सिचुएशन। लास्ट she went for a vacation and she told me certain things जो मुझे लगा कि okay, mom of boys होना इतना आसान नहीं है। There are very different situation and circumstances that she has to go through, exactly, and mom of girls
आई थिंक मेरे हस्बैंड के लिए काफी चैलेंजिंग रहा होगा इस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना, इस सिचुएशन को अडेप्ट करना, तो उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताओ। Look, being mom of girls, if I talk, or just the girls, girls में एक emotional factor भी ज़्यादा होता है, because we are born that way, because हमारी बॉडी बहुत अर्ली एज से प्रिपेयर होनी शुरू हो जाती है विद हार्मोन्स और विद मूड्स, विद एवरीथिंग, बिकॉज हमें आगे जाने के लिए इफ अ वुमन चूजेस टू बी अ मदर, हमें बहुत जल्दी ही ऑन आई थिंक इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग अस। और वहाँ पे ये होता है कि गर्ल्स दे लाइक देयर ओन स्पेस, दे लाइक टू बी ऑन देयर ओन, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जब तक बॉयज की बात है, बॉयज आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, they are very quiet, they like to keep things into them, है ना, उनको नहीं अच्छा लगता, because घर में चाहे हम वो कर रहे हैं कि है ना we let them express themselves, but outside world doesn't let them do that. हम स्कूल्स में देखें, टीचर्स भी, कई टीचर्स आई हैव सीन और हर्ड अबाउट कि वो ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं, ये लड़के तो ऐसे नहीं होते, अच्छा लड़कों को तो लगती नहीं है, एक जैसे वो स्टेटमेंट, मर्द को दर्द नहीं होता। सबसे ज्यादा आई थिंक आई एम गोना बी वेरी, सबसे ज्यादा दर्द ही मर्द को होता है, और they are crying from inside, they are crying for help, but they are just stuck in themselves because they are not been brought up like that, they are brought up like that. So I feel गर्ल पेरेंट के अपने चैलेंजेस हैं, बॉय पेरेंट के अपने चैलेंजेस, अब कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड कुछ इजी नहीं है। मतलब अगर कहो कि आपकी लाइफ इजी है तो इट इज नॉट एट ऑल, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का वो होता है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम पेरेंट्स से बात करें, कई लोग मदर से कंफर्टेबल हैं। सो इसमें एक चीज़ आई वुड से कि अगर इफ समबडी हैज जस्ट 2 गर्ल्स, अगर फादर जैसे कि उनके साथ बैठ के एवरी टॉपिक शुड बी ओपन, कि वो कंफर्टेबल रहें, बिकॉज एवरी टाइम मदर कैन नॉट बी अराउंड। If the girls are with the father, they should be, open to talk about maybe periods or anything. They have to talk. दृष्टि, मैं आपसे यहाँ एक चीज शेयर करूंगी। जब मेरा बड़ा बेटा था तो ये टॉपिक पीरियड्स का मैंने खुद ही पिक किया था। तो लकीली अभी 2-3 दिन पहले मेरे छोटे बेटे ने ये खुद ही टॉपिक पिक किया पीरियड्स को लेके। ही इज नॉट अवेयर पीरियड्स होते क्या हैं, बट क्लास में किसी ने कहीं से सुन के आया है कि पीरियड्स क्या होते हैं। सो आई मेड हिम सिट, एंड ठीक है, मैं उसको उस लेवल तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ आई बिलीव, और उसका शायद जो बुक्स के थ्रू पढ़ेगा या फिर जब बड़ा होगा तो शायद मेरी और काउंसलिंग उसको लेके बढ़ जाएगी। तो मतलब ऑब्वियसली गर्ल्स का तो ये है ही है कि पीरियड्स का एक्सप्लेन करना एज अ मदर, पर एज अ मदर ऑफ बॉयज तो मैं ये जानना चाहती हूँ हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक, जहाँ हम उनसे डिस्कस कर सके कि लड़कियां जो हैं वो इससे गो थ्रू करती हैं। दो एजुकेशन सिस्टम इज देयर, बट यस, जो घर का एजुकेशन सिस्टम है दैट इज द फोरमोस्ट एजुकेशन सिस्टम वी आर गिविंग देम। तो मैं वहाँ मैंने बात जरूर किया, मैंने उसे बताया, और बट वो थोड़ा सा उसके मुंह पे एक स्माइल था, जहाँ वो he just turned 9 तो वो उसके लिए एक टॉपिक था, तो शायद वो शरारत का टॉपिक था। मे बी he has heard it from somebody, या उसकी, क्योंकि आजकल 9 is the age for girls, है ना, जो प्यूबर्टी वाला है, तो 9 मे बी somebody is on her periods, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये वर्ड सुना, तो मे बी क्लास में डिस्कस हो रहा है। बट एज अ मदर ऑफ बॉय मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ये टॉपिक्स हैं उनको अवेयरनेस लाई जा सके। बट स्टिल आई रियली वांट टू नो हाउ, मतलब कि आप कुछ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे इस टॉपिक से बात कर सकती हूँ, बच्चे को कंफर्टेबल कर सकती हूँ। लेट इट बी एनी टॉपिक, हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को नहीं, जहाँ बच्चा हमसे एक बड़ा ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसको लेके शायद मोस्टली मदर्स अनकंफर्टेबल हो जाएंगी या उस टॉपिक से डिवेट कर लेंगी। सो वो चीज पे हमें थोड़ा गाइड कीजिए। थैंक यू, आपने एक क्वेश्चन पूछा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन वॉचिंग अमेरिकन टीवी शोज, एंड उसमें अगर हम देखें कोई भी टीनेजर्स का है तो एवरीथिंग इज वेरी ओपन, एंड चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू देयर लाइव्स व्हिच इज नॉट very acceptable in the Indian families. So सबसे important है सेक्स एजुकेशन,
कि we are talking about it sitting in the family, but yes, it should be age appropriate. ये नहीं कि हम बहुत ही casual होके हम उस बारे में बात करें. Labeling body parts is very important. Labeling body parts हो गए कि you know छोटे एज से ही a parent should start labeling girls and boys body parts and explaining good touch and bad touch is very very important. And when it comes to periods, yes, it is very important to share with boys as well from a very early age, so that they become sensitive. And how we can do that is just talking about why it, how it happens that a girl bleeds for like 5 to 6 days in a month, and how even us as mothers we do that, what we read, we are in very pain, so that the empathetic things come in the boys. So that is very important. We will not be very elaborative because a very little boy will not be able to understand it, but all the questions should be answered so that they don't go on Google to search, because Google is not going to give them very healthy information what a parent can give. So that is the most important thing, that healthy information is given, but it is age appropriate as well. So yeah, that is the most. हमने बच्चों की तो बहुत बातें कर ली. Yes. अब थोड़ी बड़ों की भी बातें हो जाए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस चाइल्ड काउंसलर के साथ, पेरेंट कोच के साथ थोड़ा सा disappointing रहा है. Yeah. And I'll tell you why, because I also have a child and parenting coach in my family. Okay. And मैंने ये देखा है that जब आप इस प्रोफेशन में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगने लग जाता है that you are what they are doing is the best. Yes. ठीक है. And of course since I am a working mother, मुझे बहुत जज भी किया जाता है. And one of my friends, she is a child and parent coach, और उसने खुद मुझे मेरे मुंह पे जज किया. Okay. ठीक है, that my बच्चा is getting ignored, and वो something like that coming from a child or a parent coach is not cool for me. That is the most disheartening thing. Exactly. A mother can. आजकल ये these profession like life coach हो गया या child coach हो गया, parenting coach हो गया, ये बहुत common होते जा रहे हैं. At the same time, इस प्रोफेशन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है उन लोगों को समझना, स्पेशली जो इस प्रोफेशन में है. बिकॉज अगर आप इस प्रोफेशन में रह के दूसरों को जज करोगे, ठीक है, उसके बाद उनको लेबल करोगे, तो दे आर इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्टिंग देयर ओन प्रोफेशन. यस. सो मुझे ये लगता है कि मैं अगर किसी पेरेंटिंग कोच के पास जाऊं, पेरेंट कोच के पास जाऊं, तो उसमें मुझे एक सपोर्ट फैक्टर मिलना चाहिए. बिल्कुल. मुझे डर नहीं लगना चाहिए ये बात करें. लेट्स से इफ आई वांट टू टॉक अबाउट माय सेल्फ, I want to talk about my journey, my whatever I am doing. ठीक है, मुझे पता है, मेरे को दूसरा आके बता रहा है मेरा बच्चा इग्नोर हो रहा है, लेकिन हमें पता है हमारा बच्चा इग्नोर हो रहा है. जरूरी नहीं है कि ये आप हमें आके बताओ. ठीक है. बट और एक चीज ये भी है, जो वर्किंग मदर्स हैं उनके बच्चे, उनको तो बहुत ही ज्यादा जज किया जाता है. और आई नो व्हाट स्ट्रगल इट इज फॉर यू टू लीव योर डॉटर्स, और स्पेशली आई बिलीव एक मदर ऑफ डॉटर को तो ज्यादा ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉटर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है. मतलब कि अगर कोई माँ, लड़कों की माँ अगर वो इग्नोर करे तो इतना नहीं उस पर उंगली उठेगी जितना एक लड़की की माँ पे उठेगी, क्योंकि बिकॉज दे ग्रो सो अर्ली. लाइक I'll share an experience with you. Yeah. So when I had my 2 daughters, I took a break. Okay. मैं घर से भी काम कर चुकी हूँ, मैं जाती थी काम करने, but I was not very regular to office. ठीक है. When I took break, when I was almost invisible to the whole world, किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था. But when I started working, जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि मैं उन्हें अकेला छोड़ सकती हूँ, now they have become an individual, they can take care of the house. And when I stepped out of the house to work, I was judged. I was brutally judged. Yeah. And उसमें क्या होता है ना, आपकी इमोशंस ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं. और मीनू आई ऐड हियर, अब जैसे मैं आई एम ऑन सोशल मीडिया लाइक बीइंग अ फूड कंटेंट क्रिएटर, तो शायद ये एक प्रोफेशन की तरह आज तक नहीं देखा जाता है, जबकि मेहनत शायद उतनी है जितनी 9 to 5 वाली जॉब में बहुत ज्यादा है. बिकॉज हाँ जी, तो इफ मुझे बहुत बार ये सुनने में आ जाता है, अगर कभी मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए, अरे इसको बोलो ना ये बंद करे, क्या वेला वाला काम कर रहे हैं, है ना. तो मतलब कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चीज मेरे तक आई है कि you have to sit back to look for your kids. Even like I being a lawyer also, तो कहीं ना कहीं मुझे step back करना पड़ा because my husband is posted somewhere else, so I have to be. It was my option to stay with my kids. But it has to come from you. It cannot be coming from others. Yeah. मैं वही चीज बोल रही हूँ because मैं रितु को देखती हूँ,
and she knows about how I work, how I function. हमारी लाइफ में कोई सैटरडे संडे नहीं है. बिल्कुल. Even on weekends we are working. We are thinking, हमारा दिमाग constantly चलता रहता है because it's very engaging. Exactly. मीनू और मैं मीनू को वो बता रही हूँ. I told you we will have lot of questions. हम फोन का स्पीकर ऑन करके मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं. मतलब कि इवन इफ आई एम एट होम, आई एम डूइंग माय कंटेंट क्रिएशन, मेरा लाउड स्पीकर ऑन होगा, आई एम डिस्कसिंग समथिंग विद द टीम और जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशन चल रहा है. मतलब कि बहुत सारा कुछ चलता है. तो वो चीज all the things you both have mentioned, है ना, even like when I had to That guilt, that mom guilt. Yes. You know what actually happens is एक बहुत छोटा सा just one line and you know सब कुछ sum up हो जाएगा. एक फादर घर से बाहर निकलता है, उसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती. अब मदर हैज टू बैलेंस विद 10 hands घर को भी, काम को भी, बच्चों को भी, अपने आप को भी, हस्बैंड भी एंड फैमिली भी. तब भी we are being judged because it's never enough for them. it is never enough and it will never be. So इसमें to how to manage things is सबसे पहले prioritize yourself as an individual human being, because before you became a mother, before you became anything, you were just an individual self. Just prioritize, take some out, some time for yourself, or like जैसे वो कहते हैं ना me time, वो एक जरूर अपने आप को डेजिग्नेट करो. बहुत ज्यादा जरूरी है because what nobody talks about it, because जब once you deliver a baby, new mothers when they deliver a baby, the postpartum things they go on, nobody talks about it. Everybody has faced but nobody talks about it, and it takes years and years to go. वो सिर्फ 6 weeks या 40 days में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता. एंड फॉर वर्किंग वुमेन जो वो मॉम गिल्ट आता है, अच्छा यार हमारा बच्चा घर पे अकेला है, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो सो रहा है, वो क्या कर रहा है अभी, वो जो चीज़ है ना, उसमें हम ये कर सकते हैं. जो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो टॉकिंग विद देम एज वेल. लाइक आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. माई सन इज जस्ट अ year old. And I started working after like 6-7 months when he was just 6-7 months, because from a very early age I want to show my son that not only dad goes to the office, your mother goes too. And that is a very important thing for my son to see that यार अच्छा मम्मा भी उतना ही काम करती है जितना पापा करते हैं, सिर्फ पापा ही थके हुए नहीं आते. बिल्कुल. अगर मम्मा घर पे भी है वो तब भी काम कर रही है, अगर वो किचन में काम कर रही है या कुछ भी. So I want to show my son that. And that is how I'm planning to bring him up. And me and my husband, touch wood, we both share the same parenting style, and it is cherry on the cake. It helps us because when I need to step down and my husband takes over, and it is really, really important. And for working women, prioritizing yourself, and yes, your family and your children, that is also important. I will not say that that will take definitely a little back seat, but just how to manage things, like we have to be a multitasker, and that is how our society is. But planning things for your children, maybe some I talked about it before, undivided attention, because our children are really wanting that. A parent to just sit with them for 10 minutes and asking not about school, अच्छा आपने स्कूल में क्या पढ़ाई करी, no, आज आपने खाना किसके साथ खाया, जस्ट टर्निंग योर क्वेश्चंस एंड थोड़े से क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज करना. आप अच्छा आपने क्या किया स्कूल में, आज गर्मी बहुत है, हाउ डिड यू फेल्ट, है ना, अच्छा आपको खाना ठीक लगा आज स्कूल में, किसके साथ बैठ के खाया, व्हाट ऑल कॉन्वर्सेशंस यू हैड. मे बी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गिव यू मोर इंटरेक्शन एंड मोर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर चाइल्ड. That's very true, Drishti. Because हम जब भी बैठते हैं, अच्छा आज क्या किया स्कूल में, कौन सी मैम आई थी, वो कहेगा यार मैं अभी तो वहां से आया हूँ. वही वाला एटमॉस्फेयर मिल रहा है. बिकॉज हम एंटर करते ही शायद एज अ पेरेंट हमारी इंस्टिंक्ट होती है क्या पढ़ के आया, एग्जैक्टली, ट्यूशन में क्या पढ़ के आया. Yes, do ask those questions, but maybe after half an hour, maybe after 40 minutes, we have to ask. But let's keep ourselves in that shoe. हम अभी ऑफिस से गए, हमसे कुछ जाते ही पूछे, अच्छा आज कितना काम हुआ, है ना, कौन आया था, कौन सा क्लाइंट आया था, कितनी इरिटेशन होगी यार, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए. So these are the little things which parents अगर अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में ये चेंजेस करें ना, तो things will become smoother for parents and for children, both of them.
दृष्टि, मेरा बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन Yes. है आपसे सिबलिंग राइवलरी पे। यस सो जस्ट मुझे एक ये चीज बताइए, हमने सबने फेस किया होगा, आई बिलीव एवरीबडी, एंड दैट इज इनएविटेबल। तो कहाँ पे एक पेरेंट को स्टेप इन करना चाहिए? मतलब कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर सपोजली मेरे बच्चों की कोई राइवलरी है, वेयर शुड आई स्टेप इन जहाँ पे मुझे लगे कि ये इट्स अ रेड फ्लैग ऑफ दैट राइवलरी, हेल्दी सिबलिंग राइवलरी से वो अनहेल्दी की तरफ जा रहा है। देखो, राइवलरी आती क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको कंपैरिजन फील हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक पेरेंट ने ही एक बड़े बच्चे को बोल दिया ये तो अच्छे तरह पढ़ाई कर रहा है, तेरे नंबर ही नहीं आते, उसके तो आ गए, है ना, ये ज्यादा हार्ड वर्कर है तो पढ़ता ही नहीं है। ये छोटे छोटे जो ये है ना, जो हम कंपैरिजन करते हैं, ये बच्चों में लड़ाई करवाता है। बाकी कब पेरेंट का स्टेप इन करना चाहिए? जब आपको लगता है कि हाँ उनकी नॉर्मल बहस चल रही है, दे कैन हैंडल ऑन देयर ओन, हमें उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि वो अपने आप हैंडल करे, बिकॉज इट विल गिव देम अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार ये हमारा रिलेशनशिप है, हमने इसको कैसे संभालना है, एंड दिस विल हेल्प देम टू मैनेज देयर रिलेशनशिप्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। एक पॉइंट ही हो गया, बट येस अगर कुछ फिजिकली हिट करने वाला आ गया तो डेफिनेटली, अगर इफ अब्यूसिव लैंग्वेज आ गई है और फिजिकली हिट करने वाला आ गया है तो येस अ पेरेंट शुड स्टेप इन एंड टेल देम दैट दिस इज नॉट एट ऑल विल बी गिवन अ चांस ऑफ हियरिंग इट, कि ये तो होना ही नहीं है। लाइक मेकिंग अ वेरी क्लियर लाइन दैट फिजिकली हिटिंग एंड अब्यूसिव लैंग्वेज इज जस्ट आउट ऑफ द रडार। वो चीज में एक लाइन ड्रॉ करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हेन अ पेरेंट कैन स्टेप इन। बट yes, give your children a chance to mend things on their own as well, because that is how they're gonna learn, and stepping forward of maybe apologizing or maybe taking the sense of responsibility as well कि हाँ creating a bond. yes, this will help them। वो कहते हैं ना जितनी आपकी लड़ाई होती है प्यार भी उतना Yeah. होता है। so these are the old statements which are coming from the older generation, कहीं ना कहीं वो सही भी हैं। so give them the sense of responsibility and उन पे acceptability भी आएगी कि हाँ यार हमने ये लड़ाई करी है, हमसे गलती हुई है, हमने सॉरी भी बोलना है। दृष्टि, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इनफैक्ट देयर इज लॉट टू वेंट आउट, बट अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर आपसे पर्सनली हमें काउंसलिंग लेनी है तो उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? वेयर यू आर अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा उसकी डिटेल्स में बताइए। So I am available both online and offline. So my office is coming up in Sector 68 Mohali, and even you can contact me on my Instagram page Drishti Listens. I also run a parents group on WhatsApp. I created that group when I was a newly postpartum mother. I went through severe postpartum depression, and that is how I came up with that group to support the parents community, and where we mothers can vent out our guilts and our mistakes as well, and not just happy memories. So that is where you can contact me and you can join my group as well. The link is there in my Instagram bio. तो ये थी हमारे साथ दृष्टि, जो कि पेरेंट एंड चाइल्ड काउंसलर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनके बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे, जो उनके मन में डाउट होंगे एज अ पेरेंट, और जिनके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं वो दृष्टि को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डिटेल्स सब हमारे कैप्शंस में रहेंगी। और अगले एपिसोड तक अलविदा, बाय बाय।